ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुषुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। सर्वाग्रे परमाराध्य श्री गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराजेर चरण कमल वंदना करे तार आशीर्वाद प्रार्थना करी। दूर दूरान्त होते যারা অমর কথা ফেসবুকে এই প্রোগ্রাম শোনেন সেই সব ভক্তবৃন্দ বিদ্বৎ সমাজ বৈষ্ণব মণ্ডলী মাতৃশক্তি সবাইকে জানাই আমার হার্দিক অভিবাদন। কালসর্প দোষ কাটাবার দিন যারা আসছেন তারা তো আসবেনই, আরো অনেক বুকিং রয়েছে তারাও আসছেন। সেই প্রসঙ্গে বলি, আমি সোমবারে একদম হাওড়া থেকে পূর্বা এক্সপ্রেসে বৃন্দাবনে চলে যাচ্ছি হাওড়া থেকে। সেই জন্য আপনাদের কাছে নিবেদন যে আপনারা যারা এই ব্যাপারটাকে গভীরভাবে চিন্তন মনন করেন তাদের একটা বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে ভক্তি যোগাশ্রম ট্রাস্ট নানানভাবে জগতের হিতে কাজ করে চলেছে এবং সেটা আমার জীবনের মূল লক্ষ্য। একটা কাজের জন্য এসেছিলাম, কাজটা পুরো হলো না, হতে হতে আটকে গেছে। যাই হোক, আমাদের পরম প্রিয় গুরুভ্রাতা শ্রী দেবেশ মণ্ডল, দেবেশ প্রভু, তিনি এটাকে নিশ্চয়ই যত্ন করছেন, পরম যত্ন করছেন। যা খবর পাই তার চেষ্টাতে কোনো রকম ত্রুটি নেই। আশা করি হয়ে যাবে, তার চেষ্টা আছে আর আমারও ইচ্ছা আছে। যেদিন ভগবান মনে করবেন যে এটা হতে হবে তো ওটা বিক্রি হয়ে যাবে, অর্থাৎ নেবুখালীর যে গেস্ট হাউস হোটেল কেশবানন্দ প্যালেস। প্রসঙ্গক্রমে অ্যানাউন্সগুলো করে দিই। আজ কালসর্প দোষ কাটাবার দিন, কালকের গুছাচ্ছি। যারা ভাগ্য বিচার করবেন কালকে আসতে পারেন, তবে পরশুদিন সকালবেলা আমরা চলে যাব। এখন আর পাবেন না, পাবেন মে মাস থেকে। এপ্রিলের হয়তো লাস্ট উইকে আমি ব্যাক করব। আর আমাদের রমা শিকদার, যতীন শিকদার আশ্রমের পর প্রতি বছর ওদের বাড়িতে ওরা গ্রহ শান্তি সস্তয়ন বিশেষ যজ্ঞ করেন এবং তারা আমার উপরে প্রচুর শ্রদ্ধা রাখেন। তার বোন, রমা শিকদারের বোন শ্যামা কিংবা সীমা কিংবা তার ভ্রাতা নারায়ণ, এরা সবাই পুরো ফ্যামিলির সমস্ত লোক, রাধা হচ্ছে ওর বড়দিদি, সবাই আশ্রমের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সেই প্রসঙ্গে আরো বলি, যেটা আমার বলার, যে আমাদের বৃন্দাবনে কিন্তু কাজের গতি, আমি গেলে আপনাদের দেখাতে পারতাম, তবে কাজ কিন্তু দ্রুত চলছে। আজকে ছাদ ঢালাই হওয়ার কথা, কিন্তু একটা ছেলে একটু কাজে ব্যস্ত বলে কালকে সকালে 3 তলার উপরে যে ঘরগুলো হবে তার ছাদ ঢালাই হবে কালকে। এবং আশ্রমের সামনের গেটটাকে ভেঙে একটু অন্যরকম আকার দেওয়া হচ্ছে, যাতে আমার গাড়িটা টাটা টিসকন 2 এটা গাড়িটা যাতে ঢোকানো যায়। কারণ গেস্ট হাউসের হল, গেস্ট হাউস যেহেতু লিজে আছে, সেখানে ওদের রান্না বান্না হয়, ক্যান্টিন আছে। সেই কারণে গেস্ট হাউসে যারা থাকবেন তারা গেস্ট হাউসের বুকিং করে নেবেন, কোনো চিন্তা নেই। গেস্ট হাউসের তাদের নাম্বার আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন। আর আশ্রমে যারা থাকবেন, আশ্রমে প্রত্যেক ঘরে গ্লিজার লাগানো এবং প্রত্যেক ঘরে নয়, কিছু ঘরে এসি লাগানো আছে, সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে। সেই জন্য আশ্রমের ঘরগুলো সেরকম হচ্ছে। আমাদের মৌসুমী মা, তার বাবা পরম ভক্ত, আমি তাকে সত্যি, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, পরম শ্রদ্ধা হয় ওই মায়ের বাবার প্রতি। আমার অপারেশনকালে তিনি নিরন্তর গীতা পাঠ করেছিলেন,
যাতে স্বামীজি সুস্থ হয়। আমার হার্ট অপারেশন, ওপেন হার্ট সার্জারি হচ্ছিল, তিনি সমানে গীতা পাঠ করেছেন। সেই জন্য তিনি আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন, আর তার প্রতি আমার এত অন্তরের টান বলা যায় না। আর তার মেয়ে তো আমার শিষ্যা, আমার কন্যা, মানে পরম প্রিয় কন্যা, শুধু কন্যা না, পরম প্রিয়। এমন প্রিয় মেয়ে যার তুলনা নেই। সেও বৃন্দাবনে ঘরের জন্য টাকা দেবে, কথা দিয়েছে, দিয়েই দেবে। সে তার কথা মানে কি, সে কতবার টাকা দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর স্মৃতিতে দিয়েছে, মা মরে যাওয়ার পরে 50,000 টাকা দিয়েছে, তারপরে আরো যজ্ঞে টাকা দিয়েছে। এবং আমাদের কালকের অমরেন্দ্র হাজরা, তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তাকে আমি বলছিলাম যে আপনার একটা নাম তো থাকা উচিত, আপনি আমাদের পরম প্রিয় লোক, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কতদিনের বলুন তো। বলে আপনি যে আমাকে মনে করেছেন সেটাই বড় কথা। তো ভীষণ ভালো, সবাই যেভাবে চেষ্টা করছেন। আশ্রমের কাজ, টাকা মহারাজের কাছেও আছে, মহারাজও চিন্তা করে না যে টাকা কেউ দিলেই হবে, এরকম ব্যাপার নেই। আমি মানে আমার যে গেস্ট হাউস, সেখান থেকেও পয়সা আসে, বিভিন্নভাবে পয়সা আসে, অতএব কাজ তো হবেই। তবে পরশুদিন আমরা এখান থেকে ডাইরেক্ট যাচ্ছি, সেই ব্যাপারে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই কালকের মধ্যে যারা আসতে চান তারা চলে আসবেন। একটু কথা বলার, এবার হিন্দিতে বলবো, ভালো করে শুনবেন। দেখুন, देख लीजिए, ये बंगाल में एक प्रचलन है, बांग्ला शब्दों में कहता है कि ग्वाल, माने जहां गाय गोरू आदि हम लोग बचपन में भी देखे हैं, देखा कि ग्वाल द्वार माने ग्वाल के सामने वाला घास जो है वो गौ नहीं खाते, ना गौ माता ना बैल, ये सब खाते नहीं है, क्योंकि उसमें उनको बदबू लगता है। क्योंकि गोबर गोमूत्र जो ग्वाल घर में होता है, उसके सामने का घास बहुत ज्यादा तेज घास होता है, क्योंकि वो खाद भी बहुत तेज होता है। लेकिन वो गाय आदि वो नहीं खाता। ये जो अखिलेश यादव है, ये भी यही है। ये ऐसे गाधा है, ऐसे मतलब गौ है, ऐसे बैल है, ऐसे सांड है, जो धर्म को जानता नहीं। इसके बाबा को, इसके पिताजी को मौलाना मुलायम का कह के हम लोग बुलाते थे। और ये जाके हरिद्वार में ना आया, क्योंकि हरिद्वार बिहार से पास में ही तो पड़ता है, इलाहाबाद, वहां नहीं गया। क्यों? वो वहां का ऐसा बेल है, उसको वहां बदबू लगता है। हरिद्वार में जाके स्नान किया। ऐसे पाखंडी, ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी साधु लोग भी कह रहे थे, और मैं भी कह रहा हूं, ऐसे अखिलेश जैसे पाषंडी को कभी किसी प्रकार का वोट मत दीजिए। इस पार्टी को समाज से बिल्कुल बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं रहना है। एक अपोजिशन, एक ही पार्टी रहना है, वो भी सोच समझ के रखना है। लेकिन अपोजिशन पार्टी रहना जरूरी भी है, वो भी हम चाहते हैं। लेकिन ऐसे अखिलेश जैसे पापियों को नहीं। हरिद्वार में जाके क्यों ना आया? अरे पापी, तुम तो कहते हो वहां पापी ना आता है, तो हरिद्वार में कौन ना आता है? पुण्यात्मा आता है। तुम कह रहे पापी, तुम्हारे मुंह से ऐसा शब्द निकला कैसे? त्रिवेणी संगम, जो हजारों सालों से, युग युगों से, वैदिक कालों से, ऋषि कालों से, शुद्ध ऋषि काल से नहीं, दैविक कालों से सारे देवता वहां एकत्रित होते हैं। और यही कहा गया है भागवत में, वेद शास्त्र में कहा गया कि देवता लोग ये त्रिवेणी संगम में एकत्रित होते हैं। आपने सुना नहीं? हम कई बार कथा सुना, इस बार तो हम वृंदावन में जो भागवत कथा सुनाएंगे वो 5 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। 1 महीने का वहां गीता महायज्ञ और श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक का हम व्याख्या करेंगे। उसमें सभी लोगों को हम निमंत्रित करते हैं कि भागवत कथा तो सुनते हैं ना। आजकल भागवत तो आपके लिए इजी हो गया ना, कुछ कथा सुनाया, कुछ नाचा, कुछ कूदा, कुछ गाया, तो भागवत हो गया। भागवत कैसे होता है, भागवत का विशेषता क्या है? हमने एक बार इसमें सिविल लाइन्स आनंद, आपका आनंद आश्रम, हमारे जो महापुरुष थे सुखदेव
जैसे भजनानंद जी, सुखदेवानंद जी, नारदानंद जी, ये लोग एकर्षानंद जी के शिष्य थे। और इसीलिए सिविल लाइन्स आनंद आश्रम सुखदेवानंद जी का आश्रम है। वहां पर जब हम गए थे तभी हमने ये कहा था, एक बहुत बड़े भागवत का विद्वान आया, उनको मैंने पूछा कि आप ऐसे, हमारे एक गुरु आए थे, तो हमने उनको पूछा कि बोलिए ना भागवत में कितने सब्जेक्ट है। बोले ये क्या प्रश्न हुआ। मैंने कहा भागवत में कितने प्रश्न है, ये क्या प्रसंग हुआ। भागवत में तो 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। अरे ये सब मूर्खों की बात मत बोलिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, पर्टिकुलर प्रश्न का। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग प्रश्न करते हैं, जवाब नहीं देते तो छोड़ देते हैं, लेकिन केशवानंद ऐसे बदमाशों को नहीं छोड़ते। केशवानंद कहता है भागवत को पढ़ो। बोले मैं एक करपात्री जी का साथी हूं, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं और आप मुझे इस तरह से करते। वो छलांग लगा रहा था, इधर उधर भाग रहा था गुस्से में। हमारे एक गुरु भाई थे, बहुत बड़े सन्यासी थे, तो पर्वत महाराज नाम का, तो मैंने, वो बहुत हंस रहे थे क्योंकि वो उसको अपमान कर रहा था पहले ये पंडित। लेकिन पंडित को मैंने इतना अपमान किया, क्योंकि जब दूसरे का सम्मान आप नहीं करोगे तो आपको भी अपमान झेलना पड़ेगा। मैंने इतना बड़ा अपमान किया, वो पंडित समझ गया कि आनंद आश्रम सिविल लाइन्स में, सोच लीजिए मैं जिस समय गया था वो समय था 74, 75 में मैं वहां गया था। तो सोच लीजिए तब वहां मैंने ऐसा आलड़न किया। मैंने कहा पंडित जी, जो धीर स पंडित, जो धीर है वही पंडित है। तो आप तो धीर नहीं है, अशांत है, चंचल है, आप कैसे पंडित है, आप कैसे पंडित है। तो ये जो धीर स पंडित, तो इसीलिए ये मौलाना मुलायम का बेटा ये अखिलेश यादव ये इतना बड़ा पापी है, घर के घास को छोड़ करके वो हरिद्वार में घास खाने को चला गया। क्योंकि बचपन में हमने देखा था ग्वालद्वार का घास गाय बकरी या कोई भी वो लोग नहीं खाते, इतना सुंदर घास होता है लेकिन खाता नहीं है। तो ये पापी भी ऐसा ही है, ये हरिद्वार चला गया। आपको हम बताते हैं कि देखिए ये जीवन तपस्या के लिए हमको मिला है, तो जो आदमी तपस्या करेगा उसमें एक पावर पैदा होता है। मेरे जीवन में जैसे मेरे जीवन एक पावर से परिपूर्ण है, एक पावर से हम परिपूर्ण रहते हैं, वो पावर हमें निरंतर गाइड करता रहता है। इसलिए किसी भी स्थिति में हम विचलित नहीं होते। हमारा गेस्ट हाउस को 16 तारीख को रजिस्ट्री होना था, सब कुछ नापजोग हो गया, सब कुछ हुआ, सारा सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, कुछ कारण से रुक गया। लेकिन हम कहते यही भगवान की इच्छा है तो कोई बात नहीं, ये सड़ने वाला चीज तो है नहीं, बिकेगा, कोई भी समय आएगा तो बिकेगा। तो इसलिए वो गेस्ट हाउस नहीं बिका, उसका दाम फाइनल हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो बिक नहीं पाया क्योंकि कुछ कारण था। कुछ कारण ऐसे है, वैसे कोई कारण नहीं है। जमीन तो बिल्कुल जितना नाप का है उससे भी ज्यादा जमीन है, जितना सब कुछ है उससे भी ज्यादा जमीन है, सब कुछ है, इतना बढ़िया बिल्डिंग, सब कुछ देख के खुश हुआ। लेकिन वो कह रहे थे हमको वहाँ होटल नहीं, हमको वहाँ ये बनाना है, आपका हॉस्पिटल बनाना है। तो वहाँ आपका साइड से हाई टेंशन का तार गया हुआ है, तो इसीलिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम है, हम देखते हैं क्या होता है। इंजीनियर को दिया है, इंजीनियर अगर कहता है तो हम ले लेंगे। इस तरह से हमारे जीवन में राम सिंह ऐसे ही व्यक्ति है, बुद्धिमान भी है, अच्छा व्यक्ति है। हमारे देवेश मंडल एमएलए, वो हमारे गुरु भाई हैं, सात्विक आहार करता है। वो ऐसे एमएलए होकर भी एमएलए क्वार्टर में भी अपने हाथ से भोजन बना के खाता है, ऐसे सात्विक जीवन। क्योंकि हमारे गुरुजी के एक प्रिय शिष्य है, उनके पिताजी भी शिष्य थे, दीदी भी थी, भाई भी है, सब लोग हमारे आश्रम के शिष्य हैं, तो इनका तुलना नहीं है। तो आप लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि हम वृंदावन में जाके रोज हरि कथा सुनाएंगे। एक आध दिन कभी किसी कारण से बंद हो सकता है, शुरू में एक आध दिन बहुत ज्यादा काम हो सकता है, लेकिन इलाहाबाद में जाइए और भारतवर्ष के पुण्य तीर्थ जहां देवता लोग सम्मिलित हुए थे, जानते हैं शिव जी का जो अपमान हुआ, सती का जो देह त्याग हुआ, सती का शरीर छोड़ने का, जो कंखल में शरीर छोड़ा दक्ष यज्ञ स्थान में, उसका प्रारंभ तो यहां से ही हुआ था।
क्योंकि ये ब्रह्मक्षत्र था, इसको ब्रह्मक्षत्र कहते हैं। जब ये 3 ग्रह का मिलन होता है ना, रवि, चंद्र और बृहस्पति, ये तीनों शुभ ग्रह माना जाता है। रवि पृथ्वी का नियंत्रक है, चंद्र मन का कंट्रोलर है और बृहस्पति पृथ्वी के शक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य, संपद, गृह आदि देने वाले। ये 3 ग्रहों का समावेश जब विशेष योग बनता है तो तभी ये ब्रह्मक्षत्र होता है। तो ये ब्रह्मक्षत्र इतना बड़ा ब्रह्मक्षत्र है कि इसमें सभी देवता आए थे, महादेव भी आए थे। तो उसमें दक्ष सभापति, उस दिन ब्रह्मा जी ने कहा था दक्ष सभापतित्व तो करेगा, तो दक्ष जी ने आने में देर किया। तो शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए आपको। ये बात हम इसीलिए कहते हैं, जीवन में जब भी समय मिले मेडिटेशन करो, शांत हो जाओ, आनंद चेतना में डूब जाओ। जैसे मैंने आंख बंद किया, मैं इतने सुंदर दुनिया में चला जाता हूं जिसका कोई व्याख्या नहीं है। ये सच है, ये तुलसी जी है, ये फूल है, ये वृक्ष है, इनको साक्षी रख के चंद्र सूर्य को जब मैं आंख बंद करता हूं तो दिव्य चेतना में चला जाता हूं, दिव्य चेतना में, दिव्य आनंद में, दिव्य अनुभूति में चला जाता हूं। आप भी जाइए। शिव जी भी वही गए थे, शिव जी ध्यान चेतना में डूबे हुए थे। तो शिव जी इतने सुंदर ध्यान चेतना में डूबे हुए थे। तो शिव जी को ध्यान दीजिएगा, ये शिव जी जो थे उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया कि कौन आया कौन गया। दक्ष प्रजापति ने देखा, सब खड़ा होके अध्यक्ष का सम्मान किया, शिव ने नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि ये मूर्ख है, ये है वो है, शिव जी को बहुत गाली दिया। यहां से ही प्रारंभ हुआ शिव और दक्ष का विवाद। और शिव विहीन यज्ञ, ऐसा यज्ञ, शिव विहीन यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने, और वो यज्ञ भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। और पार्वती सती, क्यों पार्वती तो बाद में जन्म हुआ, सती ने वहां शरीर छोड़ा। तो ब्रह्मक्षत्र में सभी देवता सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, सभी देवता आते हैं, आज भी है। और सभी देवताओं का उपस्थिति में ये ब्रह्मक्षत्र तैयार होता है। इसलिए इलाहाबाद के जो ब्रह्मक्षत्र है, जो कुंभ मेला है, इस कुंभ मेला में सभी लोग जाइए और कुंभ मेला में सभी हरि कथा सुनिए। कुंभ मेला साधु महापुरुषों का दर्शन कीजिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और आश्रम के जो सेवा कार्य हो रहा है, कोई अगर कहता है कि हमारा एक पत्थर लगा दीजिए, तो उसमें नेम प्लेट लिखने के लिए 4000 रुपया लगेगा। पत्थर खरीद के जो आप बोलेंगे वो लिख के उसमें डाल देंगे। आप लोगों का इच्छा हो तो करिए, ना इच्छा तो बिल्कुल मत करिए। और केशवानंद महाराज की जो जिसका श्रद्धा है वही महाराज की कथा, महाराज जी की कथा को सुने, समझे और अनुभव करे। ओम शांति, सबका कल्याण हो।